Hello everyone, welcome to this platform of learning. I have started making videos on chapter explanation to help you out understand each and every chapter quite well. So I'm really glad that you are watching this video. As you can see the screen, my today's topic of discussion is the poem Wind from your book Beehive. The original version of this poem was written by written in Tamil by Subramaniam Bharati, who was also a great national activist in the pre-independence era. The poem that we are going to read uh, is a translation done by English translation that is done by Arjun. Okay, he was known for his important translation works of classical and modern poetry. Let's start the explanation now. Wind matlab hawa. We all know what wind is, and we also like to enjoy the wind when it is soft. Do you know what wind is called when it is soft? It is called breeze. But we also have experienced natural calamities like Yash and other cyclones. They are also wind. But do you like them? No, because they are destructive. When wind uh, takes the form of cyclone or storm, they become destructive. Then they have the power of destroying each and every thing that are weak. The poet here tries to project this power of wind through this poem and also give us advice how to not be afraid of wind. Let's see what advice he is giving us through this poem. Okay, now I'm going to read the poem line by line and explain it as easy as possible. So please be with the video. जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन समरी में बोला कि विंड जब आता है एंड वो जब साइक्लोन का एक रूप ले लेता है तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तब वो सब कुछ तोड़ने लग जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. तो उसी विंड को एड्रेस करते हुए पोएम को शुरू कर रहा है एंड ही इज टेलिंग, आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. तो विंड को एड्रेस करते हुए विंड के उद्देश्य में पोएट बोल रहा है कि विंड तुम सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो यू नो व्हाट आर द एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है जब विंड आता है और आपका विंडो खुला होता है तो क्या क्या होता है. तो बहुत कुछ टूट जाता है, हमारे बुक्स गिर जाते हैं, पेपर्स इधर से उधर हो जाता है. तो उसी को ही निशाना करते हुए पोएट बोल रहा है कि आप ये शटर्स ब्रेक मत करो, पेपर्स को स्कैटर मत करो और बुक्स को मत फेंको. So in very polite way, the poet is requesting the wind not to break and shatter anything. There, look what you did. You threw them all down. तो पोएट बोल रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ फेंक दिया है. You tore the pages of the book. बुक्स के सारे पन्ने तुमने फाड़ दिए हैं. You brought rain again. और फिर से बारिश ला दिया है. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun मतलब किसी का मजाक उड़ाना, and weakling मतलब जो भी weak है उनको बोल सकते हैं हम लोग weakling. मतलब weak person, ठीक है, या weak चीज़ें. तो बोल रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो और जो भी चीज़ वीक है उनके ऊपर तुम मजाक उड़ाते हो. Frail crumbling houses, crumbling doors,
crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. सब कुछ तोड़ देते हो. क्रम्बलिंग मतलब तोड़ मरोड़ देना. फ्रेल मतलब वीक, तो वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स मतलब एक जो बीम होता है दरवाजे के ऊपर, उसको बोलते हैं राफ्टर्स. वुड जो कि वीक है, तो सारी चीज़ जो वीक है तुम वो तोड़ देते हो, इंक्लूडिंग हार्ट. हार्ट कैसे तोड़ देते हैं? जब किसी विंड की वजह से, कोई साइक्लोन की वजह से कोई आदमी मर जाता है. when somebody dies because of a cyclone, his family's heart is broken, isn't it? तो इसीलिए बोल रहा है कि तुम हार्ट को भी क्रम्बल कर देते हो. तो विंड तो डिस्ट्रक्टिव है ही, और वो बहुत पावरफुल भी है. वो किसी भी चीज़ को तोड़ने का क्षमता रखता है. ठीक है, तो उसी पावर को द पोएट हैज़ कंपेयर दिस ट्रमेंडस पावर ऑफ द विंड टू द पावर ऑफ गॉड. विंड के ये पावर के साथ गॉड के जो पावर है उसको कंपेयर किया है, और उसने बोला है कि विंड गॉड, जो हवा का जो देवता है, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनो मतलब झाड़ना. ठीक है, फसल मतलब धान या गेहूँ, उसको झाड़ने को बोलते हैं विनो करना. और जब विनो करते हैं तो जो लाइट पार्टिकल्स है, हल्का जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ द विंड. हवा उसको नीचे फेंक देता है, और जो भारी जो गेहूँ होता है वो रह जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विनो. तो इज टेलिंग द विंड गॉड ऐसे इस प्रोसेस के साथ विनो कर रहा है, जैसे हम लोगों को झाड़ रहा है. एंड क्रशेस देम ऑल, जो भी वीक है उसको क्रश कर रहा है, वो उसको तोड़ रहा है. ठीक है, he won't do what you tell him. So now he is telling that okay, ये हमें मानना ही पड़ेगा कि हम जो सोचते हैं, अगर हम लोग विंड को बोले कि विंड आप ये सब मत करो, ये सब ना तोड़ो, विंड ये बात नहीं सुनने वाला. ही विल डू व्हाट ही लाइक्स. उसको जो करना है वो करेगा ही. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? पोएट इज गिविंग द सोल्यूशन ऑल्सो, वो सोल्यूशन भी दे रहा है. See the next few lines, very important line. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly. तो बोल रहा है कि हम लोग अपना घर स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जो डोर्स है उसको फर्मली फिक्स करें. ठीक है, प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी. नॉट ओनली दैट, सिर्फ घर स्ट्रॉन्ग करने से ही नहीं होगा, हमें हमारा बॉडी भी स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग करना है. बॉडी मतलब हेल्थ, हमारा हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें मेंटली एंड फिजिकली बोथ स्ट्रॉन्ग होना है. हार्ट, मेक द हार्ट फास्ट मतलब भी दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो हार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, डू दिस, ये करो. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस. ये करने के बाद तुम देखोगे कि विंड हमारा फ्रेंड हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ये विंड का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो वीक फायर्स को, मतलब जो कम आग होता है उसको बुझा देता है. एंड जो ज़्यादा आग वाले स्ट्रॉन्ग फायर जो होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, उसको हवा दे के वो पूरा फॉरेस्ट जला देता है. सो यही उसका कैरेक्टर है. जो वीक फायर है, जैसे एक माचिस का तीली अगर जलाओ तो अगर उसको आसानी से वो ब्लो कर देता है, बुझा देता है. ठीक है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. और जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है, जैसे कि मैंने बोला फॉरेस्ट फायर और सिलेंडर का फायर, जब किसी घर में आग लग जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग फायर हुआ, उसको और भी बढ़ा देता है और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है. फ्लरिश मतलब बढ़ा देना, रोर मतलब उसको ऐसे कर देना जैसे कि वो रोर कर रहा है शेर की तरह, बहुत मोर पावरफुल कर देना. ठीक है, his friendship is good. At last he is telling that, but if we be
अ फ्रेंड ऑफ द विंड, हम लोग अगर फ्रेंड बन सके, विंड का फ्रेंड हम बन सके तो वो एक अच्छी बात है, बिकॉज ही इज़ वीक एंड ही विल मेक अस वीक। वो तो वीक सॉरी वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो हमें भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो हमें उनका फ्रेंड होना चाहिए। वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो हमें भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वी प्रेज हिम एवरी डे, सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग हिम कि विंड गंदा है, विंड तोड़ देता है, हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली, एंड हमें उनको प्रेज करना चाहिए कि विंड का जो पावर है, ट्रिमेंडस पावर को हमें मोटिवेट करना चाहिए, वो प्रेस करना चाहिए, और हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। So this is all about the poem that I have discussed. So you can see एक strong आदमी है, यहाँ पे एक वीक आदमी है। तो स्ट्रॉन्ग आदमी को किसी भी तरह से कोई बड़ी डिफ़िकल्टीज हार्म नहीं कर सकता। Here the most important thing, the poet has used the word wind as symbol. वो wind को एक symbol की तरह यूज़ किया है। विंड मतलब सिर्फ विंड ही नहीं है, यहाँ पे विंड मतलब हमारे लाइफ का जो हार्डशिप है, हम जो डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, विंड सजेस्ट एज द डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप एंड प्रॉब्लम्स, big challenges in our life. So whatever big challenges come to our way, हमारे रास्ते पे जो भी challenges आए, हम उनको तोड़ सकते हैं, हम उनको पार कर सकते हैं अगर हम लोग मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, सो अभी हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया गया है। First of all, rhyming scheme. There is no specific pattern of rhyming scheme here in this poem. So this kind of poem is called free verse. जिस poem में कोई specific rhyming scheme नहीं होता है, उनको बोलते हैं free verse। ठीक है, few literary devices जो इस पर्टिकुलर पोएम में यूज़ किया गया है वो है एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, alliteration and symbolism. So I will first tell you the definition of this poetic devices. हम लोग definition देखेंगे। So anaphora क्या टेक्निक है? What technique is this? Anaphora means when a word is repeated at the start of two or more consecutive line. अगर दो कंटिन्यूअस दो लगातार जो लाइन्स है उसमें पहला वर्ड अगर सेम है, इन दैट केस दैट टेक्निक इज कॉल्ड एनाफोरा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ढूंढेंगे, वी विल सर्च इन द पोएम वेदर वी गेट दिस काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस और नॉट। सो एनाफोरा समझ में आ गया। द पर्सनिफिकेशन, दिस टेक्निक इज व्हेन the poet imposes the living quality on a non-living thing. किसी भी living non-living thing के ऊपर, जैसे wind non-living thing है और उसको बार बार बोल रहे हैं कि तुम मत तोड़ो, तुम मत ये करो वो करो, तुम तोड़ देते हो, ये बार बार बोल रहा है। एंड the poet is addressing the wind like a human. वो किसके एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा है। सो दिस क्वालिटी इज कॉल्ड, this technique is called personification. Next technique is repetition. Repetition क्या है? अगर किसी भी दो लाइन में या तीन लाइन में एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार यूज़ किया जाए, when any word or a group of words is repeated many times and that is to lay emphasis. किसी चीज़ को जोर देने के लिए अगर कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो तो इस टेक्निक को बोलते हैं रिपीटेशन। नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे जो which is used in this poem. The next technique is alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound in close connection, especially the beginning of consecutive word. Consecutive word मतलब लगातार जो word use हो रहा है, कंटिन्यूअस मतलब आस पास के वर्ड्स में अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज सेम, बिगिनिंग में सेम कॉन्सोनेंट हो, हर एक वर्ड के बिगिनिंग में सेम कॉन्सोनेंट यूज़ किया गया हो और वो सारा वर्ड्स एकदम आस पास में ही हो, तो उस टेक्निक को बोलेंगे एलिटरेशन टेक्निक। ठीक है,
नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म. व्हाट इज सिम्बोलिज्म? अगर कोई भी चीज, इफ एनीथिंग इज यूज्ड एज सिंबल टू एक्सप्लेन अदर थिंग, अगर किसी भी चीज़ को सिंबल के जैसे यूज़ किया जाए, किस लिए? ताकि दूसरी चीज़ समझाया जा सके. जैसे यहाँ पे विंड, मैंने बोला कि विंड एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है. विंड मतलब सिर्फ विंड नहीं है. विंड मतलब इट इज़ एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, ऑल द चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस एंड हार्डशिप, जो भी प्रॉब्लम और एडवर्सिटीज़ है उस सभी को समझाया गया है by this word wind. So wind is a symbol. So this technique is called symbolism. I have very minutely done this thing so that you can understand the use of poetic devices. So look here, in the first few lines you see I have underlined something. You have to focus on that part. See, don't ये लगातार तीनों लाइन में फर्स्ट में देखो, don't ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना. तो एंड सेम वर्ड रिपीट हो रहा है एकदम फर्स्ट में, लाइन के पहले. तो इस टेक्निक को बोलेंगे लाइंस लगातार होना चाहिए. तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनाफोरा. ठीक है. नेक्स्ट इज यू डिड. तो सारे वो सब पूरे पोएम में द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड एज ह्यूमन बीइंग. उनको ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो एक ह्यूमन है. ठीक है. जैसे लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. ठीक है. ये तो विंड तो नहीं कर सकता. विंड इज जस्ट नेचुरल एलिमेंट, नॉन लिविंग थिंग. तो वो तो ये सब नहीं कर सकता. फिर भी पोएट ने बोला है कि तुमने किया है. ठीक है. तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन. अनदर पोएटिक डिवाइस आई हैव नोटेड हियर, दैट इज एपोस्ट्रॉफी. अगर किसी भी पोएम किसी पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करते हुए स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे विंड कम सॉफ्टली, विंड को बुलाते हुए बोल रहा है कि कम सॉफ्टली, विंड को एड्रेस कर रहा है. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी. ओके. I have left next few lines for you so that you can find out yourself the other the poetic devices used here. I'm sure you can do it. So do it yourself. Next, in next few lines I will show you the use of repetition. I told you repetition किसको बोलते हैं? when a word is repeated. यहाँ पे देखो crumbling, not only twice, बहुत बार यूज़ किया गया है. so this technique is called repetition. ठीक है. I hope you have understood what is repetition. तो अगली बार अगर किसी भी poem में you are reading some other poem, you can find this poetic devices. okay. नेक्स्ट इज़ एलिटरेशन. सो एलिटरेशन के बारे में मैंने बोला कि अगर आसपास की कुछ लाइनों में सेम पहला लेटर, आसपास के कुछ वर्ड्स में पहला लेटर एक है, सेम लेटर यूज़ किया गया है. जैसे देखो विंड गॉड वी नोज, डब्ल्यू यूज़ किया गया है बार बार, 2 बार. तो इसको बोलेंगे एलिटरेशन. यहाँ पे नीचे भी है कि देखो विंड विल, डब्ल्यू इज यूज्ड ट्वाइस. okay, in 2 consecutive words. So this is also an example of alliteration. Symbolism, I have already told you, wind blows out weak fires. So wind here symbolizes the challenges of our life. So it is called symbolism. I hope you have understood the whole poem and the poetic devices quite well. Still, if you have any doubt, you can write me in comment box. okay, I will solve your problem. And please write in the comment box if what chapters you want the explanation of, then I will make the videos on those chapters also. So now I will recall what message we have got from this पोएम. हमने क्या मैसेज सीखा है वो हम रिकॉल कर लेते हैं. तो मैसेजेस, द पोएट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. हमें मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. किस लिए? इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. हार्डशिप ऑफ लाइफ मतलब विंड. अगर कोई भी विंड या हार्डशिप हमारे लाइफ में आए तो हम उससे
जीत सकते हैं अगर हम लोग मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस। टेल मी व्हाट अदर explanation you want. Okay, so bye bye, take care.